नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada,
प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। Hare Krishna. Thank you, Ronnie Prabhu, Shivani Mataji, and Vijay Mataji. Thank you so much. Very nice kirtan. आपका मृदंग की कमी है। मृदंग is missing. प्रभु जी मृदंग वाले प्लेयर अभी करताल संभाली खड़े हैं। वो मूव ही नहीं हो रहे मृदंग पे। परंपरा करनी पड़ेगी, करताल वाले को मृदंग पकड़ाइए और जो ताली मार रहा है उसको करताल पकड़ाइए। ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं तो उसको कहती हूँ मृदंग उठा ले, अभी वो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ना, काफी दिन से हुई। यस माता जी। और ठीक है आप माता जी? ठीक है। हाँ जी ठीक है। हरे कृष्णा। सो आप सब लोगों का स्वागत है और होपफुली वी विल सी Rasanand Prabhu shortly. He finishes a class by 7:30 and then he joins here. So we'll just, I think, another 5 minutes, Prabhuji will be there. And we have done six shlokas we have done. And now today we will be doing the seventh shloka. So we will be in a manner coming down for the last two esoteric shlokas and hearing how Guru and Krishna, how they are one, but at the same time they are different also. So who remembers what did we learn yesterday? Not yesterday, last Friday. Who remembers? Please raise a hand. तो प्रभु जी आते हैं. Yes, ma'am. Nobody took any notes? Yes, Mataji. Go ahead, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Hare Krishna. प्रभु जी लास्ट टाइम प्रभु जी ने बताया था जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जस्ट शेयर फर्स्टली दैट जो निकुंज योनो है वो उसका बताया था ऑफ राधा एंड कृष्णा। रति मींस ऑफ कॉन्जुगल लव, केली मींस ऑफ पास्ट टाइम एंड सिद्धय फॉर परफेक्शन, या मींस व्हाटएवर, Alibihi means by gopis and Yuktihi means arrangements. And Prabhuji explained that Guru how expertly worship Radha and Krishna. And Prabhuji also explained that Kunj places where the latas are naturally tangled, entangled. We can't hear your voice, Mataji. It's echo. Are you on a speaker phone or something? No, Prabhuji. I'll just try to connect with my headphone. Meanwhile, any other can share. Okay. Who else noted down? Kanta Radhika Mataji, did you note down anything? She's also attentive here. Hare Krishna Prabhuji. So basically last time what we heard is that Guru knows how to do the seva of Radha Krishna in a manner that makes even gopis happy about it. So he knows exactly how to serve the Yugal Roop of Radha Krishna in the Nikunja. That is, I think, what I remember clearly. And he's very expert at it. He's Atyant Daksha at it, as well as he's Ati Vallabhasya of the Radha, of the gopis. So gopis are, find him very dear. And he also mentioned that the Yugal Puja was not being done in the Sanatan Dharma initially. And it is Madhvendra Prabhuji who started the Yugal Puja. And he mentioned that Akinchan Bhakti is an alloyed devotion, which basically gurus are expert at. Yeah, that's what I remember of the head. Okay, Mataji. Yes. Madhvendra Puri, he is the seed of this tree of devotion to Srimati Radharani and Krishna. Yes, Meenakshi Mataji?
Hare Krishna. Rani Prabhu, did you make any notes last time? Yes, Prabhuji. Prabhu, we read that how spiritual master is very expert in performing all the sevas, and how this Nikunj Ratikili Siddhi is the most highest of all the pastimes and the most intimate ones actually. And Nikunj means like Nikunj means together, and means both. So like both Radha and Krishna, and this was the one part, and 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 he Prabhuji also mentioned about the place, about that it is like a natural home where the lata and the trees they come together, and it's like it is naturally being made, and where these pastimes happen, and he also mentioned about Shri, that we take Shri Krishna or like that, where Shri means Srimati Radha Rani, and so we always take both Radha and Krishna together. So Krishna is never alone, or Radha is never alone. So both are together always. And in Gaudiya Vaishnava, we worship both of them together. So this was also one of the points which Prabhuji mentioned. And yes, Prabhuji. That is why you will never see in Gaudiya paintings Krishna ever alone or Radharani ever alone. Yes. And Prabhupada also emphasized that we should not paint them or show their pictures alone. So Krishna is usually with the friends, with the cow, with the peacocks, like, or with Srimati Radharani, or with his parents. And similarly, we should also not see Srimati Radharani alone, that she's always with her friends or with Krishna. Okay. Anybody Hare else? Krishna, Prabhuji. Yes, Madhav. I'm audible now, Prabhuji. Yes, Madhav. थैंक यू प्रभुजी 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 ने शेयर किया था कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आई वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओनली एज अ सर्वेंट ऑफ लोटस फीट ऑफ अ लॉर्ड. सो प्रभुजी ने डिस्कस किया था कि द गुरु आल्सो सर्विंग द राधा कृष्णा very nicely, and we also should serve as a das and udas of a gopi guru. And Prabhuji also shared that it is easy in Kali-yuga to become a das and udas of Chaitanya Mahaprabhu. So to serve, and also he shared that to serve Krishna we should be very expert, ati daksha. So Prabhuji shared that we should try to become expert in all the fields. So we do bhakti with the fixed mind, and then all the qualities come automatically. Prabhuji also shared this point. And like Radharani is also doing a service of Krishna very expertly. So we just try to serve Guru, and that way we can serve the Krishna. Yes. And if we do seva of Krishna expertly, then also we can become dear to Krishna, which Prabhuji shared. Thank you, Mataji. So Rasanand Prabhu is here. So we heartily welcome Rasanand Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu ji, Danvat Pranam. You're on mute, Prabhu ji. Okay, so Dandavat Pranam Prabhu. Can you hear me? Yes, Prabhuji, we can hear you. Okay. Sorry, I got late. I actually sent a message to Roni Prabhu. I'll be 10-15 minutes late today. Oh, okay. We had actually a program because of today is holiday, Gandhi Jayanti. Yes. One youth festival, just singing. Yes, Okay, Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshutarine Vancha Kulpaturu Shripa Sindhu Evacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So we are discussing from Gurvashtakam. आज हम श्लोक क्रमांक 7 पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट श्लोक में हम लोगों ने ये चर्चा किया कि आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार सभी गुणों का सागर है, गुना अर्णवस्य। तो फर्स्ट श्लोक में बेसिकली ये बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की क्यों जरूरत है भौतिक संसार में बद्ध जीव को भी। क्योंकि जो बद्ध जीव है वो संसार दावानल, इस दावानल रूपी जो संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अर्जेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर उस श्लोक में बताते हैं, ताकि हम समझ जाएंगे कि इस भौतिक संसार में हम कितना कष्ट भोग कर रहे हैं, तो हम एक आध्यात्मिक गुरु क्यों ग्रहण करना चाहिए उस चीज को हम समझ जाएंगे। एंड देन सेकेंड श्लोक में ये बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की जो क्वालिफिकेशन बताते हैं कि खास करके कलयुग में आध्यात्मिक गुरु डेली क्या करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन नृत्य और गीत गाते हैं वादित्र माध्यम, और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए जो गुण गान महिमा कीर्तन करते हैं। और ऐसे कीर्तन करते करते उनके शरीर में इस प्रकार दिव्य जो सिम्टम्स, एक्सटैटिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, रोमांच, कंपा, अश्रु, और उस प्रकार गुरुदेव की हम चरण वंदना करते हैं। देन थर्ड श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु विग्रह की सेवा करते हैं। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, आध्यात्मिक गुरु नित्य डेली भगवान की जो विग्रह की सेवा करते हैं और साथ में श्रृंगार करते हैं भगवान की विग्रह की, और मंदिर मार्जन भी करते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु खुद नहीं करते, युक्त से भक्तांश, उन्होंने उनके जो शिष्य हैं, शिष्य को इस प्रकार सेवा में लगाते हैं। युक्त से भक्तांश शनि युंजतोपि, उन्हें इस प्रकार अपने शिष्यों को भी सेवा में लगाते, विग्रह की सेवा में। उस प्रकार गुरु की हम चरण वंदना करते हैं। देन विग्रहों को किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु प्रसाद भोग अर्पण करते हैं। 4 प्रकार जो भोग अर्पण करते भगवान, और उसके बाद देखते हैं कि उनके भक्त और जो शिष्यगण प्रसाद लेके तृप्ति उनको संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आध्यात्मिक गुरु देखते हैं कि प्रसाद लेकर तृप्ति मिलते है, संतुष्टि मिलती है, तो आध्यात्मिक गुरु भी संतुष्ट हो जाते हैं। एंड ऐसा आध्यात्मिक गुरु हमेशा राधा माधव की जो अपार अनलिमिटेड। Prabhuji, your voice is not coming through. Hare Krishna. Yes. I think Prabhuji is facing some internet connectivity issues. I think we lost Prabhuji is here. Hare Krishna, Prabhu, can you hear me? Yes, Prabhu. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. So आध्यात्मिक गुरु हमेशा इस प्रकार प्रतीक्षण आस्वादन करते हैं राधा माधव की लीला गुण रूप नाम। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण हम वंदना करते हैं। एंड देन नेक्स्ट श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया
निकुंज यून रति के लिए सिद्ध। लास्ट क्लास में निकुंज यून मतलब राधा कृष्ण युगल दोनों की रति के लिए, रति मतलब इंटीमेट फर्स्ट टाइम, और केली मतलब लीला, ये सिद्धि मतलब संपन्न करने के लिए या जाली धीर युक्ति अपेक्षणीय। अली भी मतलब गोपी, वृंदावन की जो गोपियां जो जिस प्रकार अरेंजमेंट करती है राधा कृष्ण की लीला संपन्न करने के लिए, उसी विषय में तत्र अति दक्ष बहुत ही एक्सपर्ट है, अति वल्लभ के साथ में बहुत ही प्रिय है राधा रानी की, वो आध्यात्मिक गुरु, हम उनके चरण वंदना करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये 7th वर्ष। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्त तथा भाव यत्र एव सद्वीर किंतु प्रभर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक गुरुवाष्टकम में, मुझे लगता है कि ये लास्ट श्लोक के 8 नंबर सबसे ज्यादा कोट करते हैं, ये फर्स्ट श्लोक। तो ये इस श्लोक में आध्यात्मिक गुरु की जो महिमा है, रियल तत्व वो बताते हैं। इसमें आध्यात्मिक गुरु असल में कौन है, गुरु तत्व बताते हैं। साक्षात ये डायरेक्ट हरित्वेन, जो भगवान हरि भगवान विष्णु में जो क्वालिटी है, सेम क्वालिटीज है इसमें आध्यात्मिक गुरु में। और ये कौन बता रहा है, समस्त शास्त्र है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं गुरुवाष्टकम में, यद्यपि फिर भी उन्होंने बताया ये सभी शास्त्रों में कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। उक्त मतलब ये सभी शास्त्रों में कहा गया है। और साथ में सद्भी शब्द आते साधु से, साधु मतलब साधु से सद्भी। तो साथ में भव्यते एवं सद्भी, साधु लोग भी इसको कंसिडर करते हैं, सेम कंसिडरेशन जो शास्त्र में कहा जाते हैं, साधु लोग भी सेम मानते हैं। क्या है, आध्यात्मिक गुरु साक्षात हरि जैसे सभी शास्त्रों में कहा जाते हैं। और भव्यते एवं सद्भी, जो महान मुनि ऋषि जो है उन लोग भी ये स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो है भगवान तुल्य है। लेकिन किंतु प्रभोर्य, इसका मतलब ये नहीं ये जो परमेश्वर भगवान की गुण है आध्यात्मिक गुरु में, लेकिन साथ में क्या है, किंतु फिर भी ये आध्यात्मिक गुरु कौन है, प्रिय एवं तस्य, आध्यात्मिक गुरु भगवान के एक प्रिय सेवक, उस आध्यात्मिक गुरु की हम चरण वंदना करते हैं। तो इसमें गुरु तत्व बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु तत्व, आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन इस श्लोक में बताते हैं। गुरु तत्व और शिव तत्व ये माना जाता है बहुत डिफिकल्ट समझना, क्योंकि इस श्लोक में ये अपरेंटली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि ये बता रहे साक्षात हरि है, मतलब साक्षात ये मतलब स्वयं भगवान हरि, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण, साथ में बता ये भगवान के प्रिय सेवक भी है। ये दोनों कैसे हो सकते हैं, ये साक्षात हरि भी है, साथ में हरि के सेवक भी है। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आध्यात्मिक गुरु की जो महिमा, साक्षात हरि, उनकी पोजीशन कितनी ऊंची है, ये हम जितने बार बार सुनेंगे आध्यात्मिक गुरु के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। प्रभुपाद बताते हैं भागवत में, ये कहते हैं गुरुषु नरमतिर अर्चे शिरा बुद्धि, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को, भगवान के जो विग्रह को एक पत्थर समझते हैं और आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं, ये सबसे पाखंडी व्यक्ति है, आध्यात्मिक गुरु के साधारण मनुष्य। तो इस प्रकार वर्णन जब हम सुनेंगे कि साक्षात हरि, आध्यात्मिक गुरु एक साक्षात हरि जैसे हैं, तो उनके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। साक्षात हरि, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की जब हम संगति करते हैं हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु साक्षात हरि होने के बावजूद भी इस भौतिक संसार में एक मनुष्य के रूप में आते हैं। जिस प्रकार ये वैष्णव भजन में लिखते हैं, जीवेरो निस्तारो लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश गुरु रूप धरी। आध्यात्मिक गुरु
इस भौतिक संसार में आते हैं बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। असल में वो कौन है? नंद सूत हरि, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है, उनसे अभिन्न है, लेकिन इस भौतिक संसार में आते हैं कृपा करने के लिए। इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्या लिखते हैं? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण, भगवान कृष्ण उनकी कृपा जब वितरण करते हैं, उनकी जो मूर्ति है बहुत सुंदर मूर्ति बनती, और वो भगवान कृष्ण की जो कृपा की जो मूर्ति है वो है आध्यात्मिक गुरु। तो भगवान कृष्ण एक प्रकार से ये बोल सकते, भगवान कृष्ण अपने आपको स्वयं को आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक्सपांड करते भौतिक जीवों को उद्धार करने के लिए। इसी श्लोक में वो बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु की जो महिमा हम जितना श्रवण करेंगे हमारी उतनी प्रगति आध्यात्मिक लाइफ, क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन भौतिक संसार में जब आते साक्षात हरि, आप बोल सकते हैं तो हाँ आध्यात्मिक गुरु को हम देखते हैं कि हम जैसे बातें करते हैं, हम कभी कभी उनसे अच्छे क्लास भी दे देते हैं, कभी ऐसे होते हैं हम उनसे अच्छा भजन भी गा लेते हैं, वो हम जैसे खाते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, है ना, विग्रह सेवा करते थे। एक प्रकार से हमें साधारण मनुष्य ज्ञान आ जाते हैं आध्यात्मिक गुरु। इसलिए इस प्रकार वर्णन सुनना काफी जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक गुरु साधारण मनुष्य है, लेकिन हम हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि साधारण मनुष्य देखते हैं, हम हर एक वस्तु को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए साक्षात हरि के रूप में हम देख नहीं पाते। अब बताइए कितने बार आध्यात्मिक गुरु को इस प्रकार दृष्टि से देख पाए, ये साक्षात हरि है कि हमारे सामने जो अभी कीर्तन करने आ रहा है, हमारे सामने जो अभी प्रवचन देने आ रहा है, हमारे सामने जो अभी फूल माला दे रहे हैं, सब हमारे सामने जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये साक्षात हरि है। मतलब जो जिस भगवान की सेवा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु, वो खुद ही एक भगवान, एक प्रकार से भगवान के प्रकाश है। कितने बार हमारे मन में इस प्रकार विचार है। तो इसलिए शास्त्रों में बार बार कहते हैं गुरु नरमति, आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य ज्ञान बहुत ही डेंजरस। गुरु के मनुष्य ज्ञान नाकर पखन, गुरु निंदा कोभो करने नाशनत। वैष्णव भजन में लिखते हैं साधारण आध्यात्मिक गुरु को कभी भी मनुष्य ज्ञान नहीं करना चाहिए, ना तो आध्यात्मिक गुरु की किसी प्रकार निंदा सुननी चाहिए। तो ये इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी बोल सकते हैं हमें लगती है इनकी जो एक्टिविटीज, उनकी जो भौतिक संसार में जब आते या चले जाते हैं, ये लगते हैं हमें कि एक भौतिक व्यक्ति जैसे ऐसे लगते हैं। हम जैसे भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर भक्ति में आए, उसी प्रकार हम भी एक प्रकार चले जाएंगे भौतिक संसार से। तो ये बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु इस भौतिक संसार में एक प्रकार से भगवान जैसे लीला करते, लीला करने के नाते भौतिक जीवों को उद्धार करने की। अब देखिए भगवान कृष्ण इतना लीला करने के बावजूद भी गोवर्धन पर्वत को उठाया, कालिया नाग को वध किया, पूतना से अगासुर बकासुर वध करने के बावजूद भी शिशुपाल जैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण के साधारण मनुष्य समझ रहे थे। तो इतना आसान नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु चलो हमारे सामने कुछ अलौकिक, कुछ मिस्टिक कुछ दिखा देंगे, कुछ जादू दिखा देंगे, तभी हम विश्वास करेंगे साक्षात हरि। नहीं, भगवान कितना कुछ किया, उसके बावजूद भी जो मूर्ख व्यक्ति उन लोग दिखते नहीं है। तो शास्त्र में ये बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु भगवान को साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं, उनको किसके साथ तुलना करते हैं? उल्लू के साथ तुलना करते हैं। देखियो ना देखे यत अभक्ति गण, उल्लू के ना देखे जो सूरज किरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सूरज जब आसमान में सूरज का अस्त उदय होता है, उस समय अंधा व्यक्ति को देख नहीं पाते। और कौन नहीं देख पाते? उल्लू, क्योंकि वो दिन में निकलते नहीं। अभी दिन में जो नहीं निकलते, सूर्य को दिखते नहीं, सूर्य का जो आलो है, रोशनी है, उससे वंचित हो जाते। तो इसके नुकसान किसका है? अगर वो नहीं दिखेगा तो उल्लू का ही नुकसान है ना। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक संसार में जब आते, आध्यात्मिक गुरु के रूप में जब आते हैं, तो जो अभक्त है वो नहीं समझते कि हम जैसे जो भौतिक बद्ध जीव हमें लगती है एक भौतिक व्यक्ति जैसे साधारण मनुष्य जैसे। तो ये उल्लू जैसे आप एक प्रकार देख नहीं पाते। जैसे भगवान कृष्ण एक सुंदर लीला है, जब एक बार भगवान कृष्ण द्वारका से उद्धव को बताया, उद्धव चलो हम एक जगह में जाएंगे मिलने के लिए। तो भगवान तैयारी कर रहे थे रूम के कमरा में, बहुत देर तक तैयारी कर रहे थे, अपने आप को ड्रेस अप कर रहे थे, नया नया ड्रेस पोशाक पहन रहे थे।
अपने मुकुट पहन रहे थे भगवान। तो उद्धव बाहर खड़े खड़े तो बहुत देर हो गए। उद्धव फिर अंदर देखे भगवान इतनी देर क्या हो रहा है आप? बोले नहीं मुझे कौन सा पोशाक अच्छा लगेगा, आज मुझे विशेष ड्रेस पहनना है, मुझे बताओ ये टर्बन अच्छा लगेगा, ये मुकुट अच्छा लगेगा, ये ड्रेस अच्छा लगेगा। बोले भगवान आप ठीक है आप देखिए कौन सा अच्छा लगता है। फिर बहुत देर बाद फिर भी भगवान तैयारी कर रहे हैं। फिर उद्धव अंदर देखे भगवान आप इतनी तैयारी किसके लिए कर, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? आज विशेष बहुत ध्यान पूर्वक तैयारी कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? तो भगवान कहते मैं तो दुर्योधन से मिलने जा रहा हूँ। तो उद्धव तो बेहोश हो गए, तो दुर्योधन से मिलने जा रहे भगवान, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, मैंने सोचा किसी भक्त से मिलने जा रहा है। तो पापी व्यक्ति, दुराचारी दुर्योधन, भगवान आप बिल्कुल मत जाए, मैं उसको बुला लूंगा यहाँ पे, आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। आप जाएंगे तो इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है? पापी व्यक्ति दुर्योधन। तो भगवान कहते देखो उद्धव, दुर्योधन इतना पापी है कि वो मेरा इनसाइड जो है, जो इंटरनल स्वरूप को पहचान नहीं पाएगी, इसलिए मुझे एक्सटर्नली दिखाना पड़ेगा उसको, नहीं तो मुझे जो मेरी तत्व जो है उसको समझ में नहीं आएगा। तो आज जो भौतिक संसार में जो व्यक्ति उल्लू जैसे उदाहरण दे रहा है चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु और भगवान को देखने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाते ये असल में साधारण मनुष्य नहीं है, हम जैसे नहीं है। तो क्योंकि भौतिक संसार में कृपा करने के लिए आते आध्यात्मिक गुरु, इसलिए साधारण मनुष्य के रूप में आते। जिस प्रकार देखिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में क्यों आए? ताकि चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों के साथ मिल सके, एक साथ मिक्स होके प्रचार कर सके। अगर भगवान के रूप में आते थे तो प्रचार नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक गुरु सभी जीवों को उद्धार करने के लिए इस प्रकार आते। लेकिन कभी कभार इसमें जो बता साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रों, सभी शास्त्रों में ये मानते हैं ये आध्यात्मिक गुरु स्वयं कृष्ण है। तो ये हमें लगता है कि आध्यात्मिक गुरु इनके व्यवहार इस प्रकार, वो किसी को बोलते हैं ये मूर्ख है, ये रास्कल है, ये डॉग एंड कैट एंड डॉग जैसे इस प्रकार है, इस प्रकार व्यवहार करते हैं। सभी शास्त्रों में अगर बताते भगवान कृष्ण कभी तो किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं किया। लेकिन आध्यात्मिक गुरु क्यों आते हैं? आध्यात्मिक गुरु उद्धार करने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक गुरु उद्धार करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है, उनको गाइड करना जरूरी है, करेक्ट करते शिष्यों को आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार। लेकिन है साक्षात हरि आध्यात्मिक गुरु। लेकिन सभी शास्त्रों में और साथ में साधु लोग भी ये बताते, ये क्लैरिफाई करते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण अभिन्न है। तो ये जरूरी है दो चीज, एक्चुअली इसमें तीनों एक साथ में बताते थे, साधु गुरु शास्त्र, ये तीन चीज देखिए। सद्भी का मतलब है सेंटली पर्सन साधु, और शास्त्र स्क्रिप्चर, और कौन है? आध्यात्मिक गुरु, वंदे गुरु चरणारविंद। तो ये किसी चीज को प्रमाण करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं ये तीन मानदंड है। साधु गुरु, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं साधु गुरु शास्त्र वाक्य चित्तित करियाओ आर न करिए मोने आशा। तो ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है किसी चीज को हमें प्रमाण करने के लिए। चलो हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति में हम कुछ डिसीजन लेते हैं, हमें लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, अभी हम भगवत गीता चर्चा कर रहे थे, कोई भक्त प्रश्न पूछा थी, तो वो अर्जुन को तो मतलब थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण गाइड करते थे, उनको तो भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिला। जब कोई गलती कर रहे थे, भगवान कृष्ण कार्य कर रहे थे, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कुछ गलती कर रहे हैं भक्ति में? तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? शास्त्रों से चेक करना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं भक्ति में, ये जो करने जा रहा है ये सही है कि नहीं, शास्त्र में इसका प्रमाण है कि नहीं, शास्त्र में रिकमेंड कर रहा है कि नहीं। जैसे कोई गृहस्थ भक्त है, कोई ब्रह्मचारी है, तो गृहस्थ भक्त का जो नियम है शास्त्र के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा हो सकते हैं जब हम शास्त्र पढ़ते कभी कभी वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते, इसलिए उसके बाद साधुओं के पास जाना जरूरी है, क्योंकि साधु हो सकते उस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई बोल सकते शास्त्रों में लिखा है कि जो गृहस्थ है उनको 50% इनकम जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भेंट देना चाहिए। तो देते हैं कोई भक्त, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे राम रूप प्रभु है, पिछले महीने में दिया हमारे यहाँ पे सेंटर के लिए बिग अमाउंट, थैंक यू। तो कभी कभी भक्त लोग देते हैं ऐसे, लेकिन अभी डिफिकल्ट हो सकती है, शास्त्रों में लिखा है तो हम कैसे पालन करें, इसलिए साधुओं के पास जाना जरूरी है।
प्रभुपाद भागवत में प्रथम स्कंद में लिखते, ठीक है अगर 50% इनकम के नहीं दे पाते तो 50% एक्यूमुलेटेड मानी के दे सकते, जो संचित जो मानी है उसको दे सकते। तो इसलिए कभी कभी शास्त्र पढ़ के हमें समझ में नहीं आते, लेकिन हमें साधुओं से क्लैरिफिकेशन जरूरत है। इसलिए इसमें दो बात है, समस्त शास्त्रों साथ में भव्यता एवं सद्वी, साधु और शास्त्र ये दोनों जरूरी है। जैसे एक हमारे भक्त लोग प्रचार करने के लिए गए थे, भागवत गीता प्रचार करने के लिए गए, तो एक व्यक्ति से मिले, काफी मतलब इंटरेस्टेड था इस कौन के बारे में, और वो कहने लगा चलो हमने तो भागवत गीता पढ़ी रहती है, हमने हमारे पास भागवत गीता बहुत सारे हैं, हमने बहुत पढ़ा है। तो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते थोड़ा थक गए, और जो जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे लगा था ये हो सकते धर्मी व्यक्ति है, भक्त भी है, तो बात के सारा सिद्धांत मालूम है इनको, एक काम करते इनके पूछते थे कुछ प्रसाद मिलेगा कि नहीं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते बेचारा थक गया, तो बोले प्रभु आपको लग रहा है आप काफी पढ़ चुके प्रभुपद के भक्त साहब। बोला हाँ हम तो भक्त हैं, हम भोग लगाते रोज सब कुछ करते, प्रभुपद की किताब पढ़ते हैं, तो हमें प्रसाद मिलेगा थोड़ा क्या? बोले प्रसाद तो नहीं मिलेगा, क्यों? बोलते हम आपने तो बताया भोग लगाते। बोलते हाँ हम तो रोज भोग लगाते, लेकिन हम खाते नहीं है, भोग लगने के बाद हम नदी में विसर्जन कर देते। बोलते क्यों? बोले भागवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि पत्रं पुष्पम फलम त्वयं, इस प्रकार भोग लगाना चाहिए, भोग लगाने के बाद खाना चाहिए, ये तो बताया नहीं। अब ये कौन बताएगा? इसलिए साधु जरूरत है, इसलिए साधु जरूरत है। जब श्रील प्रभुपाद साधु बताएंगे कि महाप्रसाद गोविंद ये भोग लगाना जरूरी है, भगवत गीता में तो बताया नहीं कभी खाना चाहिए, तो बोला हम भोग लगाते बाद में विसर्जन कर देते। तो इसीलिए साधु को बच जाना चाहिए, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। तो शास्त्र, उसके बाद हमें शास्त्र पता नहीं चले साधु, अगर साधुओं से भी नहीं पता तो उन्नत साधु कौन है? आध्यात्मिक गुरु। तो शास्त्र, गुरु, साधु, इन तीनों से चेक करना चाहिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। और भी कई जगह में ये आते हैं, जैसे देखिए हमारे शास्त्र में ये जो मुनि, जो जिन लोगों ने जो भगवान के भक्त हैं, इन लोग जब लिखते हैं प्रमाण के साथ लिखते हैं, उन्होंने लिखते हैं सभी शास्त्रों में बता रहे, सभी साधु लोग बता रहे। नहीं तो कोई बोलेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आप कहाँ से बोल रही है बात, ये आध्यात्मिक साक्षात हो रही है, आप बताओ। इसलिए उन्होंने पहले से क्लैरिफाई कर दिया। जैसे राधा रानी की महिमा लिखते हैं, आप लोग गए कहाँ पे? बरसाना में। बरसाना में देखिए लाडली जो लाल मंदिर है, मंदिर के ऊपर ये श्लोक लिखा है, मुनीन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वस्त्र वंदित निकुंज भू विलासिनी। उसमें लिखते हैं, ये कौन लिखते हैं? ये बताते हैं कि शिव जी स्वयं लिखते हैं, कभी कभार ये बोलते व्यासदेव लिखते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि मुनीन्द्र वृंद वंदित, हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने बताया कि राधा रानी जो है त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोगों की शोक दूर कर देते। जब हम किसी आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, हमें हमेशा ये कोट करना चाहिए कि महान जो साधु महात्मा इन लोगों ने इस प्रकार बताया, और शास्त्र में इस जगह में इसका वर्णन, तो ये प्रामाणिक हो जाते। फिर भगवत गीता में देखिए साक्षात भगवान कृष्ण भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो भक्ति शास्त्री का हम पिछले क्लास में चर्चा की ना, पूर्वतन जो मुनि ऋषि, उन लोगों ने भी इस प्रकार ये ध्यान योग, ये कर्म योग की प्रोसेस अपनाए। तो भगवान कृष्ण ये उदाहरण देते, असित नारद व्यास कि अर्जुन मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बता रहा हूं, ये असित नारद व्यास ये सब लोग इस प्रकार ये जो प्रोसेस फॉलो करके आए पहले। तो जब हम इस प्रकार जो साधुओं के उदाहरण देते, कौन कौन साधु पहले इस प्रकार बताए, तो ये और प्रामाणिक हो जाते। सिर्फ हम नहीं कर रहे, जैसे हम जप नहीं कर रहे माला में, लेकिन संख्या पूर्वक नाम गान नदी, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, शिव प्रभुपाद भी माला में जप करते थे। तो इस प्रकार जो साधु मुनि ऋषि को उदाहरण देंगे तब प्रमाणिक हो जाते हैं ना। इवन गोपी गीत में भी इसके उदाहरण आते हैं ना, तबो कथामृतम तप्त जीवनम कोभिवीर एडितम कलमशापम। देखिए हर एक जगह में सेम वर्णन कि वृंदावन की जो गोपियां ये बता रहे कि हे भगवान कृष्ण आपकी कथाएं अमृत जैसे, लेकिन हम बोलेंगे कोई बोल सकते कि वृंदावन की गोपियां तो गांव की लड़कियां, ये भगवान कृष्ण से प्रेम करती है इसलिए भगवान कृष्ण की गुणों महिमा बता रहे। लेकिन ये बता रहे कभी भी रीडितम नहीं, सिर्फ हम नहीं बता रहे, तो महान जो कवि है नारद मुनि,
परबत मुनि, ऐसे बड़े बड़े मुनि ऋषि कवि जैसे उन लोग भी बताएं कि कृष्ण कथा अमृत जैसे। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बताते हैं किस प्रकार साधुओं, जितने साधु महात्मा है वो भी ये स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो है साक्षात हरि जैसे। सभी शास्त्र में इसको उल्लेख है, सभी शास्त्रों में उल्लेख है किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान हरि जैसे। तो हम थोड़ा सा 5 मिनट ये चर्चा करते हैं, क्योंकि श्लोक में बता रहे समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र में कहा गया कि आध्यात्मिक गुरु जो है भगवान जैसे है, भगवान से अभिन्न है। हम सुनते भक्तों से शास्त्र में कहाँ लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु भगवान से अभिन्न है। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा ब्रेन कि आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहाँ लिखा है कि ये साक्षात हरि है, भगवान से अभिन्न है। ये कोई उदाहरण हो, कोई उपमा हो, कोई शास्त्र की कोट हो, प्रभुपाद में किसी उदाहरण ये बता सकते। टू हियर फ्रॉम एवरीवन किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु साक्षात हरि है, क्योंकि इसमें समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों को कोट नहीं किया, नहीं तो श्लोक बड़ा हो जाएगा, हमारे ऊपर छोड़ दिया। सभी शास्त्रों को ढूंढना है हमें कहाँ कहाँ आध्यात्मिक गुरु के बारे में लिखा है। ओके प्रभु। Prabhu, I'm just recalling a pastime from Prabhupada Lilamrit actually. Like during early days of ISKCON, like 1966 or 67, so job devotees were there in USA, and Prabhupada was used to give initiation very soon, and they would in one of the lectures Prabhupada said that that spiritual master is God, or is to be respected as God. But one devotee, I don't remember his name, but he got confused that that Prabhupada earlier said that that spiritual master is not God, then how? And then he quoted few other devotees. Then Prabhupada said this, so what should we do? So then the other day they went back to Prabhupada, and then he inquired that Prabhupada, you were saying that spiritual master is at that time you said spiritual master is God, and then I didn't understand what is the meaning of that. Prabhupada said yes, that spiritual master is it is to be respected as equal as God, and so this was one of the pastime that I was able to recall. Good. सभी शास्त्रों में बताया गया। हरे कृष्णा। यस प्रभु, 11th कैंटो में जहाँ पर निमी महाराज क्वेश्चन पूछते हैं वो नव योगेंद्र से, तो वो स्टार्टिंग में पूरा उसमें गुरु के लिए ही ग्लोरिफिकेशन है। सेकंड चैप्टर के डिफरेंट श्लोकास, मेरे को श्लोकास नंबर याद नहीं है, बट सेकंड चैप्टर में अलग अलग जगह पे गुरु के ही ग्लोरिफिकेशन है उसमें। और गुरु की क्वालिफिकेशन हम सुन लेते हैं। प्रभु जी मंगलाचरण में हम गाते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। Okay. So that is also saying that Guru is the one who's brought us out of the Agyan. Okay. जैसे यस माता जी बोलिए। प्रभु जैसे गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कुनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ओके, तो कृष्ण की कृपा से जो मिलते हैं आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भी वो मिलते। ओके और जैसे भागवतम में शुरू में आपको मिलेगा, जब व्यासदेव नारद मुनि को एड्रेस करते भगवान नारदा, भगवान संबोधन करते हैं, और प्रभुपाद उस चीज को अप्रिशिएट करते, बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु को भी कभी कभार ये भगवान एड्रेस किए जाते हैं, जिस प्रकार व्यासदेव ने अपने गुरु नारद मुनि को किया। इस प्रकार महाभारत में भी है, द्रौपदी द्रोणाचार्य को गुरु भगवान द्रोणाचार्य बोलते। ओके, ये कोई बात रहे थे कुछ? I think Prabhu, there was one also reference that you also quoted in one of the classes earlier,
यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे, I don't remember the complete श्लोक, यथा देवे तथा गुरु, something like this. Yes. तस्सहिते कथिताहि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जिन भक्त की आध्यात्मिक गुरु और भगवान के प्रति अटूट भक्ति है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ उनके हृदय में स्वतः प्रकाश हो जाते हैं। तो सभी जगह में देखिए इम्पोर्टेंस, ये जो इवन जो माता जी बता रहे थे मीनाक्षी माता जी की गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, इसमें सिर्फ अकेला नहीं बता कि कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, तो दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसी श्लोक में जो उन्होंने प्रभु बता रहे इसमें सेम है, जैसा देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि भगवान और गुरु में दोनों में भक्ति होने से शास्त्र के जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाश हो जाते हैं। प्रभु जी दिस स्क्रिप्चर से बताते हैं गुरु तत्व इज कमिंग फ्रॉम बलराम जी एंड बलराम जी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। ओके गुड। इवन जो ये जो क्या बोलते जो 11th कैंटो में ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताते हैं, उसमें ये फेमस श्लोक आप लोगों ने सुना, प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे, आचार्यम माम बीजानियम न अवमन्यत परिचित, कि आचार्य जो गुरु है उनको क्या जानना चाहिए, ये माम कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं, आचार्यम माम बीजानियम, जो आचार्य जो है आध्यात्मिक गुरु जो है उनको क्या समझना चाहिए, मैं हूँ स्वयं, इसलिए न अवमन्यत परिचित। लेट मी डिस्कस दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी 11। उस श्लोक में ये क्लियरली बताते हैं, ये जो इस श्लोक में बता रहे हैं एग्जैक्टली सेम, ये साक्षात है। ओके, ये भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि आचार्य मांग बीजानियत, आचार्य जो है आध्यात्मिक गुरु जो उनको क्या समझे, मांग मतलब मैं खुद ही हूँ, जानो न अवमान्यत परिचित, इसलिए कभी भी अवमानना मत कर आध्यात्मिक गुरु को, न मर्त बुद्धिया सूयत, कभी भी मर्त्य मतलब मनुष्य बुद्धि मत करो आध्यात्मिक गुरु को, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वदेवमय गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन है, जिनके अंदर सभी देवता है। कितनी बड़ी बात आध्यात्मिक गुरु के बारे में बता रहे हैं, जो सभी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और भगवान कृष्ण, वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम इन एनी वे। तो प्रभुपाद ये बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं जो इसी श्लोक के संदर्भ में, ये चैतन्य चरितामृत इसके प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि उद्धव जब प्रश्न पूछते हैं तब आध्यात्मिक गुरु के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, आध्यात्मिक गुरु का आचार्य बताते हैं। हाँ, इसमें ओनली आउट ऑफ हिज इमेंस कंपैशन डज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड रिवील हिमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल मास्टर। Therefore, in the dealings of an acharya, there are no activities but those of transcendental loving service to the Lord. He is the supreme personality of servitor Godhead. It is worthwhile to take shelter of such a steady devotee who is called Ashar Vigraha, or the manifestation or form of the Lord of whom we must take shelter. The very important प्रभुपाद के पार्ट पर ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु यद्यपि भगवान से अभिन्न है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौन है, किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य। ये आध्यात्मिक गुरु भगवान से अभिन्न है, लेकिन किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य। और साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु कौन है, प्रिय सेवा के भगवान के। तो प्रभुपाद इसको दो टर्म यूज करते हैं, यद्यपि इसमें सेवा तो साथ में ऊपर बात है साक्षाधारी मतलब भगवान तुल्य है, तो प्रभुपाद बोलते सेव्य भगवान और सेवक भगवान, ये दो चीज इंपॉर्टेंट। तो ये समझ रहे, सेव्य भगवान और सेवक भगवान। सेव्य भगवान का मतलब क्या है, सेव्य भगवान और सेवक भगवान। सेवक मतलब क्या, सर्वेंट, वो भगवान है लेकिन फिर भी सर्वेंट। तो इनको क्या बताया जाते हैं, ये भगवान है लेकिन ये जो भगवान है ये कौन है, ये है
ये बोल सकते पर्सोनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। ये है सेवक भगवान, जो आध्यात्मिक गुरु। और सेवक भगवान मतलब कृष्णा। ये कौन है? पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम गॉड हेड। इतना अंतर सिर्फ है। ये आध्यात्मिक गुरु और भगवान में ये अंतर है। ये सेवक भगवान है, ये भी भगवान, और ये भी भगवान है, लेकिन ये परमेश्वर भगवान, और ये कौन है? उनकी सेवा करते हैं। सेवक भगवान, सेवक भगवान। इसलिए बता रहे किंतु प्रभोर्य प्रिय वदस्य, यद्यपि साक्षात हरि सभी शास्त्रों में बताया गया है, और साथ में सभी साधु महात्मा लोगों ने भी ये स्वीकार किया आध्यात्मिक गुरु जो है साक्षात हरि है। लेकिन ये साथ में, किंतु साथ में क्या है? ये प्रिय सेवक भी है भगवान के, प्रिय सेवक। तो प्रिय जो सेवक मतलब क्या है? ये सेवक भगवान। सेवक इसलिए हम जब भगवान की सेवा करते, भोग लगाते, आरती करते, भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा करते, हम सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु को निवेदन करते हैं, एक गुरु महाराज आप कृपा करके जो ये भोग है, ये वस्तु है, ये भगवान को अर्पण कीजिए। तो हम सेवक भगवान के थ्रू सेव्य भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या? सेव्य मतलब क्या है? गोल, जहां तक हमें पहुंचना है। जैसे क्या बोलते? दो से साधन और साध्य। साध्य मतलब गोल, साधन मतलब क्या? प्रोसेस। उसी प्रकार सेवक मतलब गोल, उन तक पहुंचना है, कृष्ण तक। लेकिन किसके थ्रू? सेवक भगवान के थ्रू। तो हम चूंकि भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, हमारी योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए भगवान सेवक भगवान के रूप में आते हैं हमें वो सिखाने के लिए किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए सेवक भगवान और सेवक भगवान ये माना जाता है। तो वो भगवान की, इसलिए ये जो लाइन है ये काफी महत्वपूर्ण, ये क्या बता रहे? प्रिय सेवक है, प्रिय एवं प्रिय सेवक। तो सेवा करने में बहुत ही प्रिय है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अति दक्ष, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो हम साक्षात जो हरि है भगवान की अगर हम सेवा करें तो उसमें कुछ गलती होते हैं, भगवान हमें सुधारने के लिए नहीं बोलेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे। कुछ करते, बड़े बड़े महान व्यक्तियों को बोलते हैं कि इसमें नमक कम हो गया। किसको बताया? सनातन गोस्वामी को, मदन गोपाल, कि थोड़ा नमक तो डाल दो आटे में। तो हमें नहीं बताएंगे, हम उतने क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु बताएंगे इसमें गरम मसाला ज्यादा डाल दिया, मिर्ची थोड़ी तीखी हो गई तो इस प्रकार बता देंगे मसाला ज्यादा दे दिया, है ना। तो आध्यात्मिक गुरु सेवा के, प्रिय सेवा के भगवान की, उन्होंने किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए ये आध्यात्मिक गुरु हमें सिखाते। इसलिए किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं सत्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम, हम उस वंदना करते। तो can I ask one small question? Where is the seva coming in this line? Kintu prabhorya priyev tasya. I mean, it's only simply saying that he is dear to God. Where is seva? हाँ, तो dear सेवक, dear servant actually. प्रिय मतलब dear servant है ना। Okay. ये अगेन अभी भी प्रमाण मिल गए, शास्त्र काफी नहीं, साधुओं से सुनना जरूरी है। तो इसमें क्या बता रहे? समस्त शास्त्र और भव्यते एवं सद्भी, साधु और शास्त्र दोनों को चेक करना जरूरी, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाते हैं। भव्यते एवं सद्भी अभी बोल सकते इसमें कहा, मैंने अलग से जोड़ दिया, मैं खुद में उस प्रकार साधु नहीं हूँ, उतने बड़ा साधु नहीं, मैं आपको ऐड कर सकूं। लेकिन प्रभुपद ये बताते हैं, देखिए प्रभुपद इसमें लिखते हैं कि he is the supreme personality of servitor goddess और आश्रय विग्रह। तो प्रभुपद जैसे महान जो साधु महात्मा है, इन लोग इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं शास्त्रों का इनर मीनिंग जो ये। देखिए संस्कृत में जो है ना, ये जो विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग ये मीनिंग समझ जाते हैं। जैसे आप भगवद गीता पढ़ेंगे ना, एक एक जगह में एक एक मीनिंग होता है कर्म का। अर्जुन को समझ में है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए साधु अर्जुन जैसे ऐसे महान जो व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, उनसे सुनना चाहिए। वो अगर विश्लेषण करके बोलते इसका मीनिंग ये, भागवतम में जब सुनेंगे तो कभी कभी संस्कृत के श्लोक में तो ये है ही नहीं, ट्रांसलेशन में कहाँ से आया।
कभी कभी हम जो पंडित लोग हैं, थोड़ा सा इस्कॉन में भी कुछ पंडित लोग तर्क बोलते प्रभुपाद से हम आचार्य जानते नहीं, संस्कृत में कदापि ये है नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ये एक प्रकार से ये एक प्रकार से आचार्यों को उल्लंघन करना है। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद संस्कृत श्लोक पढ़े नहीं, फिर भी प्रभुपाद जानते इसका इनर मीनिंग क्या है, असल में शास्त्र में या भगवान क्या कहना चाहते इसमें। जैसे ओके, मैं उदाहरण के लिए बहुत आपके प्रश्न के उत्तर में मैं अभी क्लास दे रहा था भागवतम 3-4 दिन पहले मंदिर में, तो उसमें एक श्लोक आया कि काम रूपेण क्रोध, जिसमें ये बता रहा है ये चल रहे सप्तम स्कंद में नारद मुनि के साथ दृष्टि मार्ग, उन्होंने बता रहे भगवत गीता श्लोक जैसे चीजों से एक आसक्ति से काम, और जो काम वासना कम होने से क्रोध खत्म हो जाता है। ये संस्कृत श्लोक मैंने जब पढ़ा क्लियर लगा, लेकिन ट्रांसलेशन में प्रभुपाद पूरा बदल दिया। प्रभुपाद बोलते नहीं, ईर्ष्या जब खत्म हो जाते तब क्रोध बंद हो जाते। हालांकि संस्कृत में क्लियर लिखा है कि काम रूपेण क्रोध। मुझे समझ में नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने सोचा देखो अपनी बुद्धि क्यों लगाना है, प्रभुपाद जब लिखा है हमें मान देना चाहिए। बाद में मैं उस चीज को, उस श्लोक पर अलग अलग भक्तों के लेक्चर सुना, अलग अलग किसी महाराज लोगों के, तो उन लोगों ने भी, 1-2 महाराज लोगों ने इसको बताया, देखो चूंकि प्रभुपाद बताया कि ईर्ष्या से ही काम उत्पन्न होता, सॉरी क्रोध, तो असल में ये सही बात है प्रभुपाद बताया, क्योंकि काम वासना से ईर्ष्या हो जाती है, आसक्ति से दूसरे किसी व्यक्ति को ईर्ष्या, और ईर्ष्या से क्रोध। तो प्रभुपाद जो साधु लोग जो मीनिंग देते हमें वो मानना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें हो सकता है प्रिय बता रहे, लेकिन प्रिय मतलब प्रिय सेवक, मतलब अलग अलग जगह प्रॉपर ये लिखते हैं, किंतु प्रवर्ज्य प्रिय एवं। तो आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार भगवान के अति प्रिय है, इसलिए बंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो आध्यात्मिक गुरु कभी भी अपने आप को इस प्रकार भगवान दावा नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक गुरु को हमें भगवान जैसे ट्रीट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हर एक भक्त, हर एक शिष्य कि आध्यात्मिक गुरु विनम्रता के कारण, क्योंकि सेवक है, प्रिय सेवक भगवान के, कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमें उनको भगवान जैसे फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट। कभी बोल सकते आध्यात्मिक गुरु 5 स्टार होटल क्यों व्यवस्था करना है उनके लिए, कभी हमारे मन में विचार आ सकते, अच्छा कमरा क्यों करना है व्यवस्था। भगवान आपके सामने अगर आते हैं आप व्यवस्था नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आते अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आध्यात्मिक गुरु कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु करना जरूरी है। कभी कभार आध्यात्मिक गुरु हमें शिक्षा देने के लिए बोलते हैं ये सही नहीं है, ये और अच्छे कमरा होना चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज होने चाहिए, तो ऐसे बता सकते आध्यात्मिक गुरु, क्यों हमें सीखना जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में शुरू में गए थे, तो शिष्य लोग प्रभुपाद को ऐसे साधारण मनुष्य जैसे दिख रहा है, लेकिन प्रभुपाद को विचारा है देखो ये आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार नहीं दिखना चाहिए, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने बताया आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगले दिन क्लास में एक शिष्य आ गया, क्या लेके आया, टॉयलेट टिश्यू लेके आया, बोले ये सेवा है आपके लिए। प्रभुपाद खुद जब शुरू किया पूजा वगैरह, तो प्रभुपाद खुद बोलते आओ चामर लेकर, पंखा लेकर, मुझे करो, चामर दिखाओ, पंखा दिखाओ। सब बोल सकते प्रभुपाद ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे अभी जो हम ये जो सब कुछ गुरु की सेवा कर रहे हैं, ये एक प्रकार से प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश। तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा इस प्रकार भगवान जैसे होने चाहिए, क्योंकि साक्षात हरि जैसे, साक्षात हरि, इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु को भगवान जैसे सेवा करनी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक गुरु प्रिय विनम्र शिष्य, जैसे प्रभुपाद एक बार किसी मंदिर में गए थे, और ये सारे आध्यात्मिक गुरु के बारे में सारे सब कुछ सुनने के पश्चात हमें शिष्यों को लगा चलो आध्यात्मिक गुरु ही सब कुछ है, आध्यात्मिक गुरु सब कुछ है। तुम लोगों ने नया नया इस्कॉन में भक्त बने, विदेशी लोग भगवान के फोटो उतार के प्रभुपाद के फोटो अल्टर में रख दी, तो साक्षात हो रही ये सब कुछ है। और प्रभुपाद प्रोग्राम में गए, इतने गुस्सा में प्रभुपाद डायरेक्ट जाके देखा प्रभुपाद के फोटो अल्टर में भगवान की फोटो नहीं है, जाके तुरंत प्रभुपाद अपने फोटो को निकाल कर नीचे फेंक दिया, तोड़ दिया फोटो। किसने बताया इस प्रकार करने के लिए? तो आध्यात्मिक गुरु भगवान है, लेकिन साथ में प्रिय सेवक भी है, तो भगवान के नीचे आध्यात्मिक गुरु के हम रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु के बंदे गुरु श्री चरणार विंदम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे याद आ रहा है जैसे वो हम लोग गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन जब उस टाइम पे चल रहा था, देन आपने ही वो पास्ट टाइम शेयर किया था जब गुरु महाराज आप लोग वहाँ पर ऑरलैंडो में थे और गुरु महाराज आए थे। सो गुरु महाराज थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए थे वहाँ के अरेंजमेंट देके,
एंड तो उन्होंने आप लोगों को, सब लोगों को, डिवोटीज को वहां पे डांटा था, बट उनका ये था कि मेरे लिए तो ये चलता है, बट अगर कभी फ्यूचर में मेरे गॉड ब्रदर्स आएंगे सो तब भी आप लोगों की हैबिट चूंकि वही होगी, तो इसलिए उनको सेवा सर्व नहीं कर पाएंगे। सो सिखाने के लिए, जस्ट सिखाने के लिए गुरु महाराज की वो उस चीज को बताना चाहते, बट एक्सटर्नली हम लोग ये सोच सकते हैं कि डिवोटी सोच सकते हैं इस तरह से कि हाँ गुरु महाराज अपने लिए ये सब कर रहे हैं, बट बेसिकली उनका पर्पस पीछे क्या होता है वो डिफरेंट है, हम लोगों को सिखाना। क्योंकि एक्चुअली वो मेरी गलती थी। फिर आज इतने लॉन्ग फ्लाइट ट्रैवलिंग करके आया, और उसके बाद एक्चुअली वो सुबह मतलब 10 बजे के आसपास यूरोप से आए, और उसके बाद प्रसाद जो है मेरे से दोपहर में लेंगे, लेकिन प्रसाद खिचड़ी था सुबह, और वो भी ठंडा हो गया था, तो अभी बना रहे भक्त लोग, तो ध्रुव नाराज कि मैं इतनी दूर से तुम लोग पूछा ही नहीं, खास मुझे इससे बहुत डांट पड़ा। मैं जब ट्रैवलिंग करता था, मैं जनरली ट्रैवलिंग करने से पहले जिस जगह हम लोग जा रहे थे वहाँ जी मैं पूछ लेता था पहले से कि क्या प्रसाद लेंगे, लेकिन उस समय जो ट्रैवलिंग कर रहे थे वो नया, उनको पता नहीं था, और हम लोग भी इतना तैयारी कर रहे, इतने बिजी हो गए, प्रसाद के लिए ध्यान ही नहीं दिया कोई, इतने गुस्से हो गए। लोग मेहनत कर और गुरुवार प्रसाद लेने के बाद तुरंत सामान पैक करके चले गए, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। भक्त लोग तो 2 दिन तक कुछ खा ही नहीं पाए, इतने मतलब दुखी हो गए। बाद में गुरुवार बता, देखो मेरे यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य गुरु भाई, उनको अगर इस प्रकार ट्रीटमेंट करोगे तो क्या सोचेंगे। Hare Krishna. Prabhuji, there is a question from Vinod Prabhu. He's saying, Hare Krishna, Prabhuji, if we remember our spiritual master at the time of our death, will it have the same effect as remembering Krishna at the time of death? Yes, definitely. क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को हम याद करते हैं मृत्यु के समय, भगवान को याद डेफिनेटली, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को अगर याद करते हैं, आध्यात्मिक गुरु क्या बताएंगे, बोलो कृष्ण कृष्ण बोला, एक ही बात हो रहा है एक प्रकार से। अगर भगवान के भक्तों को भी याद करते हैं, एक ही बात है। जैसे हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ते वक्त दुनिया मन में क्या विचार था कि हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि जी भाई उच्चारी में तुम्हारा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, महाप्रभु मैं शरीर छोड़ते वक्त आपकी जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करना चाहता हूँ। तो ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, चैतन्य नाम जपेंगे, लेकिन चैतन्य बोलेंगे तो महाप्रभु क्या बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो आध्यात्मिक गुरु को याद करने से डेफिनेटली, और ऐसे बहुत उदाहरण है शिला प्रभुपाद के, बहुत से शिष्य लोग जिनको प्रभुपाद मृत्यु के समय आके मदद की है, ऐसी कहानी भी आप लोग स्टोरी सुनते भगवान के भक्त लोग, जो शिला प्रभुपाद आखिरी मोमेंट में आके उनको डेफिनेटली, हम अगर इस समाज कैसे करते हैं तो डेफिनेटली के समय, और ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैं खुद देखा कि मतलब बहुत बार, हाँ बहुत सारे याद है। जैसे 2-3 बार ऐसा हुआ था, एक भक्त यूरोप में शरीर छोड़ रहे थे, तो उनको गुरु महाराज की याद आई, काफी क्लोज थे, तो उन्होंने फोन किया था, जो वहाँ पे भक्त थे, मेरा पास फोन आया था। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मैं तुरंत मतलब चल रहे थे कि गाड़ी में था, तो तुरंत रोक के ये शरीर छोड़ रहे महाराज, आपसे बात करना चाहते। तुरंत हम लोग रुक गए, तो महाराज गुरु महाराज फोन में बात की और उनको बताएं क्या बोलना चाहते हो। वो आवाज नहीं कर पा रहे क्लियरली, लेकिन सुन रहे थे। तो गुरु महाराज बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और उसके बाद क्या पता चला, वहां से फोन आया, जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र कंप्लीट हुए तुरंत शरीर छोड़ा। तो उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को याद कर रहे थे बच्चों को, लेकिन आध्यात्मिक गुरु क्या बताते कि कृष्ण को याद करो। तो एक प्रकार से बोल सकते एक ही है ना। इवन वैष्णवों को भी याद करने से एक ही बात है। आप वैष्णव, किसी वैष्णव को याद करने मृत्यु के समय, तो वैष्णव आपको क्या बोलेंगे कि कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम जप करो। हरे कृष्ण।
Thank you, Prabhuji. Thank you so much. I think he's also saying thank you so much, Prabhuji. Oh, Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Thank you, Bharat Prabhu. Yes. So thank you so very much, Rasanand Prabhu. कोई हमें कृपा करिएगा, कल हमारा पेपर है, हमें जरा आशीर्वाद दे दीजिएगा प्रभु जी कल के लिए. So is it okay? Is it you can maybe turn off Running Room live, then I can just tell something about tomorrow's class. Okay. So yeah, Kal